Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस तरह हो रही है we'll understand this, we'll decode the genetic modification in India. This topic is important from GS paper 3 perspective because we can relate this topic to biotechnology. So recently in our newspapers, there were few articles which were based upon the understanding of genetically modified mustard. So from there, we can understand, we can derive an important topic of genetic modification, like genetic modification of crops, and also because recently genetically modified mustard was approved. So therefore this issue becomes important. So when we talk about genetic modification, we have to understand this from the perspective of agriculture. Because India में agricultural experiments जो किए जाते हैं, it always have a long and a very dubious record. जब भी हम देखते हैं तो कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई क्वेश्चन या सस्पिशन उसे लेकर रहता ही है जब भी कोई एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. और इसी स्टोरी में बायोटेक्नोलॉजी ने एक न्यू ट्विस्ट ऐड कर दिया है विद दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है. वी हैव सम जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स को यूज़ करके मॉडिफिकेशंस की जाती हैं. सो जितनी भी हमारे पास एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटीज़ को हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग टूल्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं. एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ दी अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजी. So biotechnology through genetic engineering process is ultimately giving solution to address the agricultural vulnerabilities, and this use of biotechnology is just not limited to India. There are so many other countries who are in line to deploy such new genetically modified tools. Like if we talk about the major countries जहाँ पे genetically modified crops उगाई जा रही हैं, so the top are US, India, Brazil, there is Argentina, there is Canada as well. These are the top countries which are growing genetically modified crops. So together, if we look at these 5 countries, US, India, Brazil, Argentina, Canada, 90% of the genetically modified cultivation is happening here. And basically the proponents who say that we need to use genetic modification tools, they argue that we can use biotechnology, it has that potential जिससे कि हम इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो एक तरफ when it comes to genetic engineering of the crops, genetic modification, तो कुछ proponents हैं तो कुछ opponents हैं. प्रोपोनेंट्स कह रहे हैं कि भाई इस इंजीनियरिंग टूल्स को यूज़ करो और इनको यूज़ करके इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो हमारे प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करो. लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं वो ये व्यू पॉइंट रखते हैं कि अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जेनेटिकली क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं, सो दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज ऑन ह्यूमन हेल्थ. So therefore it is very important for us that we conduct a very thorough and a very comprehensive assessment of our Indian agricultural experiences, especially when it comes to genetic modification. तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किस तरह रेगुलेट की जाती हैं, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस डन बाय दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, व्हाट आर सम कंसर्न्स रिलेटेड टू इट. सो लेट्स बिगिन विद इट. Starting with our first question that comes in our mind is what is genetic modification? देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है कि उसमें जीन्स हैं, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ जीन्स, चाहे वो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो.
जेनेटिक मॉडिफिकेशन सिंपली मीन्स अगर आपने किसी ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को ऑल्टर किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन. Altering the genes of an organism is genetic modification. And the technology, it basically involves in which you can directly manipulate, you can directly make changes into DNA. Instead to use controlled pollination, पहले क्या होता था कि कंट्रोल्ड तरीके से कि आपको जो फीचर्स चाहिए, सपोज हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो वही कंट्रोल्ड तरीके से पॉलिनेशन करवाई जाए ताकि आगे जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वो फीचर्स आ जाएं. लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ में, मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में डायरेक्टली आप जिस फीचर को चेंज करना चाहते हैं आप डायरेक्टली डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द अप्रोचेस जिससे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम अल्टीमेटली वी कैन रिजल्ट द क्रॉप इम्प्रूवमेंट. सो वी कैन ऐड द डिज़ायरेबल जीन्स, जो जीन्स हमें चाहिए, एंड जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है. So ultimately, when you're adding desirable genes and you're removing undesirable genes, so you're producing better varieties. So therefore, we are saying that genetic modification is an approach to have crop improvement. So to alter the genes, जो desirable हैं वो रख लें, जो undesirable हैं उनको remove कर दें. That we can done with genetic modification. Now, the area, the scope of this branch is huge, so therefore we need some regulations as well. Like in India, if we talk about genetically modified crops, they are very well regulated. All sort of activities when it comes to GMO. What is GMO? Very important term. Genetically modified organism. कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या प्रोडक्ट है, इसे कौन रेगुलेट करेगा? इट इज़ रेगुलेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. यहाँ पे गलती नहीं करेंगे. अक्सर हमें क्या लगता है कि बायोटेक तो साइंस का पार्ट है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे रोल होगा, और वहाँ पे सोचते हुए ऑप्शन भी पड़ा होता है पेपर में साइंस एंड टेक का, हम वो टिक करके आ जाते हैं. याद रखेंगे, इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स सभी, चाहे ऑर्गेनिज्म है चाहे कोई प्रोडक्ट है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. डू राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स. एक्टिव रीडिंग करते हैं, इसे लिखिए आप यहाँ पे. That GMO, genetically modified organisms, are regulated by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under EPA 1986. ठीक है. अब फिर क्या होता है, कन्फ्यूजन आ जाती है. कन्फ्यूजन क्या आती है कि जब भी हम पेपर पढ़ते हैं और हम GM क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये आता है लिखा हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, है ना. तो माइंड में घूम रहा है, हमने तो किसी कमेटी के बारे में पढ़ा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. तो याद रखिएगा, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो ये तो क्लियर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आगे क्या है, अप्रेजल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओनली. ठीक है. तो बिगर बॉडी यहाँ पे कौन हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो इसके अंदर एक कमिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. इसका काम क्या है, दे बेसिकली रिव्यू, दे मॉनिटर, दे अप्रूव ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर है, प्रोडक्ट को लेकर है, उसके इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज़, सेल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कौन रिव्यू करता है, कौन मॉनिटर करता है. देन द आंसर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. लेकिन किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मैं बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपके दिमाग में बस जाए. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव फसाई, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसके थ्रू भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के ऊपर रेगुलेशंस लगा सकते हैं. अब हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ कर दी है
जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की। तो GM मस्टर्ड इज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। इससे पहले BT कॉटन एक ऐसी GM क्रॉप थी जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव की गई थी बैक इन 2002, जिसके बाद अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को ये अप्रूवल मिल गया है। BT कॉटन हम सब ने पढ़ा है स्कूल्स में, वी नो जब भी बायोटेक की बात आती है तो दिमाग में BT कॉटन आता है। BT इज फॉर व्हाट? BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स अ बैक्टीरिया जो कि मेनली सॉइल में मिलता है, एंड दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिक टू सम इंसेक्ट्स, जैसे कि स्पेशली जो कॉटन बॉल वॉर्म है वो मर जाता है। तो BT इज फॉर बैसिलस thuringiensis। सॉइल में है ये बैक्टीरिया, ऐसे टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जिससे कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है आपके BT कॉटन में, ताकि वो जो कॉटन बॉल वॉर्म है वो मर जाए जैसे ही वो खाने की कोशिश करे। ठीक है, तो पहले BT कॉटन अलाउड था, अब GM मस्टर्ड यहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है, जिसकी वजह से आज हम ये पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक, इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। देर आर सो मेनी सेक्टर्स, देर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें, सो इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज कंप्लीटली द फार्मा सेक्टर। यू हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, यू हैव GM प्लांट्स, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल्स थे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, उनकी प्रोडक्शन रेवोल्यूशनाइज हो गई है। नाउ द टेक्निक्स आर सच कि बहुत ही सेफर तरीके से, बहुत ही चीपर तरीके से ऐसी फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स प्रोड्यूस हो रही हैं। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज बीइंग यूज्ड इन फार्मा। चाहे वो ह्यूमन इंसुलिन की बात हो, उसकी मास प्रोडक्शन होती है GM टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। वैक्सीन्स के लिए GM टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ग्रोथ हार्मोन कोई ड्रग है। सो इट हैज़ कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज द फार्मा सेक्टर। लाइक फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं वैक्सीन की। लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस B वायरस वैक्सीन। तो ये जो हेपेटाइटिस B वायरस वैक्सीन है, इसे प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग एन एंटीजन। ऐसा एंटीजन है जो कि यीस्ट के अंदर यूज करके इस हेपेटाइटिस B वायरस वैक्सीन को वहाँ से प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो फार्मा सेक्टर्स में तो इसका अनबिलीवेबली इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से लेकर, वैक्सीन से लेकर, थेराप्यूटिक्स से लेकर, ग्रोथ हार्मोन से लेकर, सब कुछ में जेनेटिक मॉडिफिकेशन काम आ रहा है। सिमिलरली हर्बिसाइड्स के सेक्टर में अगर हम देखें, हर्बिसाइड टॉलरेंस बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द क्रॉप्स टू टॉलरेट सम ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स। जो वीड्स हैं वो मर जाती हैं, लेकिन जो क्रॉप्स हैं वो उसको टॉलरेट कर जाती हैं। तो जो क्रॉप आपने कल्टीवेट की है वो खड़ी है, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने क्रॉप्स को कि आपको भाई हर्बिसाइड नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो वीड्स हैं वो मर जाती हैं। सो सोयाबीन, मेज, कॉटन, कैनोला, इन सबको मॉडिफाई कर दिया गया, इनको हर्बिसाइड टॉलरेंट बना दिया गया है। तो पूरी क्रॉप के ऊपर हर्बिसाइड छिड़क दो, जो आपकी कल्टीवेटेड क्रॉप है वो खड़ी रहेगी, जो वीड्स हैं वो मर जाएंगी। अगैन यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलरेडी जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज़ किया जा रहा है टू हेल्प प्लांट्स सो दैट दे कैन विथस्टैंड दिस चेंजिंग क्लाइमेट, they can adapt to this changing climate. Researchers are focusing on developing such rice strains, maize strains, wheat strains which are capable of surviving in long drought situation or the monsoon situation. तो flood और drought resistant crops के जो strains हैं उनकी development पे already काम चल रहा है। तो climate change adaptation के ऊपर भी यहाँ पे भी हम genetic modification को use कर सकते हैं। Apart from this, salinity is also one feature. प्लांट्स को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो हाई लेवल ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सके, सो दैट द प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो इन द सॉल्टी सॉइल्स एज वेल। इट इज द सोल्यूशन। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, कैसा जीन इंसर्ट कर दिया
विच रिमूव द सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द वाटर। इससे पहले कि वो सॉल्ट लीव्स तक पहुंचे वो पहले ही रिमूव हो जाता है। इट एडजस्ट दैट बैलेंस, आयनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को एडजस्ट करके रखता है। तो सैलिनिटी टॉलरेंस के अंदर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। अल्टीमेटली भाई जब आपकी फूड वल्नरेबिलिटी कम हो रही है, आपकी यील्ड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इट विल कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी। आपकी क्रॉप यील्ड जब इंप्रूव हो रही है, देयर इज ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, इट विल अल्टीमेटली लीड टू फूड सिक्योरिटी। Therefore, scientists are engineering, that pest-resistant crops so that they can help the local farmers to understand कि जो भी environmental changes आ रहे हैं, that could have otherwise wiped out their whole season. लेकिन because of genetic modification, the crops are withstanding these changes. Microbes के अंदर GM ने food security के अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया है. There is a use of animal-based rennet for cheese production. So this has replaced 80 to 90% production of cheese by chymosin, which is genetically produced by a microorganism. तो फूड प्रोडक्शन में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. Then there is one more perspective, biofuel production. So there is chemical modification that was performed on the crude jatropha oil. CGO कहते हैं, CJO, क्रूड जेट्रोफा ऑयल. उस पर भी मॉडिफिकेशन करवाई गई ताकि उसकी जो लो थर्मल और ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी थी उसे इम्प्रूव करने के लिए, और जेट्रोफा को मॉडिफाई किया गया कि वो एक वायबल बायो इथेनॉल का सोर्स बन सके, एक वायबल फीड स्टॉक बन सके. तो अगर आप बायो इथेनॉल के फीड स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, सो ये गिविंग थ्रस्ट टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसमें हमारा गोल है कि बाय 2025 एंड 2026 हमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है. सो लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशन, सच अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. प्लीज डू राइट इट. आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वेन एवर वी थिंक अबाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम प्लांट्स तक आकर रुक जाते हैं. नो, consider all these sectors. ठीक है, बट सी देर आर सम कंसर्न्स. जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, कुछ ओपोनेंट्स हैं, कुछ कंसर्न्स आते हैं. आयरनिकली एक चीज़ सामने आती है कि ये कहा जाता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं दे आर वॉइड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो आप फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर रहे हैं, but you're compromising on nutritional security. Food security, but what about nutrition? What about nutritional value? क्योंकि genetically modified foods में nutritional value उतनी high नहीं होती, तो you might be achieving food security, but you're lacking on the nutritional security. Because simple, देखिए, genetic modification is focusing more to increase the production, to increase the lifespan, how to deter the pest. The nutritional value gets compromised in all of this. So number one is the compromise which is done on the nutritional security. And plus, when you are disrupting the ecosystem, you are deciding which species, which plant, which weed will grow, which will not. So genetic modification, and then you are bringing out something new in जिसमें आपने कुछ genes निकाल दिए, कुछ add कर दिए. So with this, you are first of all disrupting the ecosystem, you're disrupting the biodiversity. The better traits, which you have produced using engineering genes, that will be favoring of one organism. जो पूरा gene flow का process है वो यहाँ से disrupt हो जाएगा. It will affect the sustainability of the indigenous variety. क्योंकि एक को आपने फेवर कर दिया, उसकी जो वनरेबिलिटी थी वो आपने ख़त्म कर दी, तो वो ग्रो करेगी. जो इंडिजिनियस वैरायटी थी जिसको फेवर नहीं मिला, उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो इंडिजिनियस वैरायटी को भी इससे खतरा पहुंचता है. देन एलर्जिक रिएक्शन इज अ बिग रिस्क. इट हैज़ अ इमेंस पोटेंशियल ऑफ हैविंग एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली GMO इज बायोलॉजिकली ऑल्टर्ड. कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है, मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स आते हैं दैट इज ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस फॉर ह्यूमन.
स्पेशली दोज हु हैव अडेप्टेड टू द कन्वेंशनल वैरायटी. आपने अब चेंज कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एलर्जिक रिएक्शंस टू दैट एज वेल. एंड ऑल्सो it is a threat to wildlife. You have altered the genes of plants and it will have an effect on wildlife. Suppose you have genetically modified plants, you have tobacco, you have rice, and that are used to produce plastic or pharmaceuticals. So it will endanger those who will consume on the debris of the fields. Harvesting के बाद जो debris बच गई, they will consume it and they will have the implication on it. सो हेयर सी, पहले हमने देखा कि कौन कौन से एरियाज में आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं. इट वाउड अस, बट वी ऑल्सो नीड टू सी दैट देयर आर कंसर्न्स, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा व्हाट वी नीड टू डू. सी, नंबर वन थिंग इज बायो सेफ्टी. वी नीड टू प्रिवेंट द लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी. हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ, इन सब के बारे में होलिस्टिकली सोचना होगा. वी हैव टू क्रिएट एंड यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन कोलैबोरेशन विद द स्टीवर्ड्स ऑफ इकोसिस्टम, ताकि जो इन्वायरमेंट की डिमांड है, जो इन्वायरमेंट की नीड है, जो लोकल पॉपुलेशन की नीड है और वाइडर ग्लोबल कम्युनिटी की जो नीड है, उन सबको हम मीट कर सके विद कोलैबोरेशन. सो वील हैव टू थिंक अबाउट इट keeping biosafety in mind. And also, the genetic modification is just not the solution for food security. आपको food security में farming credit को लेकर आना होगा, how to use water efficiently, how to reduce agri waste, how to create diverse food options, how to adopt towards sustainable crop management. हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना होगा. हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा फूड इनसिक्योरिटी है, चलो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर लो. नो, यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन विद अदर सॉल्यूशंस एज वेल, बिकॉज इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू अचीव फूड सिक्योरिटी. Then when it comes to the regulations of the GM crops, see, all the regulatory bodies of GM crops, especially the genetically engineered appraisal committee, they are somewhat technically incompetent at this point of time. We need to improve their competency. This specific competence, especially on the risk management, risk assessment of the GM crops. तो वो मॉनिटरिंग और वो जो इंफॉर्मेशन स्किल्स हैं, सिस्टम्स हैं, उन्हें हमें डेवलप करना होगा. विल हैव टू क्रिएट एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द लीगल मैंडेटेड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल कमिटीज़, जिससे कि जीएम क्रॉप्स की फास्टर डॉक्यूमेंटेशन हो सके, फास्टर एनालिसिस हो सके. प्लस there should be a very consultative and a very participatory process, जिससे कि क्रॉप्स को प्रायोरिटाइज किया जाए. what traits are being used for genetic improvement, biotechnology आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं. The goal should be to address the need of the small farmers. So that we need to see, हमें bottom up genetic modification करनी होगी. Small farmer जिसको आप benefit करना चाहते हो, वहाँ से शुरू करना होगा. And then lastly, indigenous gene banks will play an important role. We have to preserve the indigenous variety. Because they have the ability to adapt to the diseases, they have their nutritional value. We'll have to preserve that as well. हम हर जगह genetically modified crops नहीं लगा सकते. We have to preserve our indigenous gene bank. Gene bank can be created. There are so many research institutes which are conducting research and they're conserving those indigenous crops. So it's very important to conserve our indigenous crops as well. Right? So please do practice this. Try to write an answer about the advantages of genetic modification, the challenges of it, and how genetically modified crops are regulated in India. Very important topic as far as biotechnology is concerned. So I guess that is all. That is all for today. Thank you so much. I'll see you all in my next one. Thank you.